Hi guys, welcome to another video. So these are the things that we'll be discussing today. So the main topic is going to be about scenario analysis. So related to financial modeling, जो भी आपके doubts are related to scenario analysis would be solved here. And other than that, I'll just try to add on data protection, protect how to protect your specific sheets, all that, and XLOOKUP and VLOOKUP like short notes so that you have an idea. Like if you don't want that, you could skip after the scenario analysis. But I'll just try to cover all these things quickly, other than scenario analysis, right? So at scenario analysis, let's say like three things. First of all, either you could go to data tab and then go to word of analysis and then these three. So these three are the only things that cover data analysis. Scenario analysis. If you know all these things, you don't have to worry. And the shortcut that we are going to discuss today, Alt A W and then SGT depending upon the use case, right? So let me just quickly show you. So let's just one second. Let's just okay. Sorry. Yeah. So we just removed all that. So guys, here we have an example, right? Okay. Yeah. Let me just zoom in here a little bit, right? So first we'll start with one second and just side by side, right? So that you have an idea of what we are covering. In scenario analysis, first we are starting with goal seek. So what is goal seek? So here we have in data, the current sales is 14,500, sales growth is 10%, gross margin is 60%. So depending upon that, next year sales is going to be yeah, so this into this, and then like if we go in here, it's going to be 60% of 15,970. And if you want, rather than keeping like this, what we could do is go to control one, click here, and change this format. So rather than doing this, okay, yeah. So first of all, let's just copy this. And then सबसे पहले अगर फॉर्मेट में जाओगे ना ये सबसे पहले पॉजिटिव में दिखाएगा देन लेट्स जस्ट से नेगेटिव के लिए हम लोग को ऐसा फॉर्मेट चाहिए आई बिलीव दिस शुड वर्क ओके ओके नेवर माइंड सो it was something. Okay, I guess I didn't give a comma. Why is this not working? Just a second, guys. I believe यहाँ पे एक comma क्यों यहाँ पे comma देने से काम करना चाहिए था, right? I mean that is what it was. If you just give a comma, as you say this, okay. Um, Never mind, it's not working currently, I believe. So let's just maybe choose this as of now, and let's just keep it negative. And then gross profit is sorry. Yeah, gross profit is so this minus this, or else if it's negative, then this plus this. So you get an idea of what are the data we have, right? So अभी हम लोग goal seek, I'll just explain you. So rather than so one and then three, तो भाई इसका sum क्या होगा four. तो goal seek में हम लोग क्या पता करना चाह रहे हैं कि if we want this to be five, right? What will this have to change? So एग्जाम्पल ये सबसे पहले फोर था, अगर इसको हम लोग को फाइव में बदलना है तो उसके लिए ये थ्री का वैल्यू क्या होना चाहिए. दिस इज इन सिंपल व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन गोल सी. So let me just rather than going around the bush, let me just explain you alt a w and then goal seek g. तो इसमें सबसे पहले सेट सेल वन सेकेंड या तो सेट सेल में हम लोग आ जाएंगे n11 एक सेकेंड n11 okay n11 right. And then two value, let's say I want this gross profit to be around I don't know, let's just say 17K something. And by changing what cell? So अभी ये लोग हम लोग से पूछ रहे हैं कि हम लोग कौन सा सेल चेंज करना है कि इसको 17,000 में बदल दे. सो इनमें से कौन सा चीज. So let's just say that I want to change gross margin for example, and if I press OK, so it gives me the number कि भाई gross margin 106% होना चाहिए. You could either press OK or else cancel if you don't want to do it, right? क्योंकि obviously 100 के ऊपर परसेंट हो नहीं सकता gross margin. So एक realistic example लेने के लिए, let's just choose this. And then to value, let's just keep it around 12K, then it should work. And then gross margin, yeah, okay, okay. So now you can see 75. अगर मैं okay करता हूँ तो ये बदल रहा है. So इसमें दिक्कत क्या है? One of the issues is that this is getting changed. And here is where the other, that we are going to discuss comes in, the other factors. कि भाई ये बदल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं ना, rather than changing this, why don't I just plot a table where I show कि if these things are changing, how much will it change? So for example, rather than beating around the bush, let's say sales growth बदले, तुमको को जानना gross profit कितना बदलेगा. So let's just say, once again, I would just copy the formatting, right? So keep it, sorry, format. Okay, 10%.
20%, 20, 30, 40, 50. Oh, sorry. 10, 12, 14. एंड देन लेट्स से भाई हम लोग को one second, हम लोग को जानना है लेट्स कीप इट टिल 24. ओके एंड देन आई जस्ट कॉपी दिस कंट्रोल ऑल्ट वी फॉर्मेट. आई जस्ट न्यू ये होगा दैट इज व्हाई इसको. ओके माय लैपटॉप फिट समटाइम. Why waste time there, right? So what is this? This is sales growth, right? लिख देते that this is sales growth and then हम लोग को one thing that you need to note here is once again alt HFB I guess it was alt HFC alt HFC and then let's keep it white, let's do it bold, alt HBB I guess it was alt H. color के लिए क्या था alt HH. Okay and then let's keep it I don't know a little greenish. एक बार के लिए रखते हैं डोंट गो विद द कलर. सो यहाँ पे एक सेल क्यों फ्री में छोड़ना है? सो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को जानना है कि क्या एक्चुअली कि इफ द सेल्स ग्रोथ इज 10%, 12%, 14%, उससे हम लोग क्या पता करना है. सो फॉर एग्जाम्पल लेट से हम लोग को जानना है कि इफ सेल्स ग्रोथ इज 10% व्हाट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट, इफ इट्स 12% व्हाट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट. सो उसको यहाँ पे रादर देन एक्चुअली इसमें यहाँ पे नंबर प्लॉट नहीं करना. You should rather connect it to the cell. If you have seen my previous videos, never do hard code. And one more thing that was said is कि इसका कलर हमेशा थोड़ा ऐसा रखो कि दिखे ना, राइट? Okay, let's just see if it's working. Okay, so we found what was the issue. Actually, I just deleted to show you a very silly issue which I get confused all the time. So सबसे पहले तो इधर से इधर तक सेलेक्ट कर लेना, ठीक है? Alt AWT जो कर रहे थे, बट एक्चुअली मैं क्या कर रहा था ना, इफ आई कुड जस्ट शो दिस टू यू वन सेकेंड. क्या हो रहा है भाई? ओके सो इफ यू जस्ट नो दिस इज ए बी सी डी ऐसा कॉलम है ये. एंड देन यहाँ पे आता 1 2 3 4 रोज. सो आई एक्चुअली टुक इट एज रो, सो दैट इज वन मिस्टेक. तो एक्चुअली ये जो 10 12% है ये एक्चुअली कॉलम में है ना, ये तो कोई कॉलम में है ना. आई विल जस्ट शो दिस टू यू. अगर मैं ये प्रेस कर रहा हूँ K17, तो ये के कॉलम में है एंड देन 17th रो में, बट ये भी कॉलम के. तो दैट इज वन मिस्टेक दैट आई वाज मेकिंग. सो इसको करने के लिए सबसे पहले आई शुड सेलेक्ट दिस होल डेटा इंक्लूडिंग द 12,000 जो हम लोग ने कनेक्ट किया ग्रॉस प्रॉफिट फॉर एग्जांपल. एंड देन इसको बस जाना है हम लोग को ऑल्ट AWT एंड देन कॉलम इनपुट सेल में हम लोग को वो डालना है जो यहाँ पे डालना है. फॉर एग्जाम्पल सेल्स ग्रोथ डाला है तो सेल्स ग्रोथ को सेलेक्ट करना है. एंटर. हाउ डू यू रीचेक कि भाई व्हाट आई डिड इज करेक्ट और नॉट? सो इफ यू जस्ट टेक केयर, ये 10% सेल्स ग्रोथ पे प्रॉफिट कितना 12,000. यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे 10% सेल्स ग्रोथ पे प्रॉफिट कितना है 12,000. एंड देन इसी का आप लोग को एक अलग लेवल पे लेके जाते हैं. सो आई जस्ट कॉपी दिस. इसको आप कंट्रोल ऑल्ट V एंड लेट्स जस्ट पेस्ट वैल्यूज. परसेंटेज में बदला एंड देन कलर बदला फॉल्स. Yeah, one more thing, if you would like to know this is there's a standard color for hard coding in finance, which is the third one from here. This is the actual color which is used, right? So if you want, like you could remember this, this is the standard color used. And then let's just say क्या बोलो ये जो है एक सेकंड. तो ये तो तुम लोग समझ गए ना. लेट मी जस्ट डिलीट इट. नो ये परेशान कर रहा है. ऑल्ट एच बी ऑल्ट एच व्हाट वाज इट ऑल्ट एच एच सॉरी. ओके सो हट गया. ओके ओके 14 16 18 हो गया. ये है सेल्स ग्रोथ. और ऊपर हम लोग क्या डालने वाले हैं? ऊपर हम लोग डालने वाले हैं लेट्स से ग्रॉस मार्जिन. सो मैं लिख देता हूँ ना भाई ग्रॉस मार्जिन. ऑब्वियसली गलतियां तो होनी है. एंड ऑब्वियसली वन मोर थिंग ऑल्ट एच वाई. लेट मी जस्ट पेस्ट द फॉर्मेट हियर.
ओके, फॉर्मेट एंटर। तो इसको एक फुल स्पेसिंग दे देते हैं। एंड देन ग्रॉस मार्जिन, लेट्स से हम लोग कितना अज्यूम कर रहे हैं, 75, तो हम लोग 40 से लाइक कंसिडर करते हैं। सो कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, एंड देन फॉर्मेट हो गया 40, 50, 60, 70, 80। Let's just say that we're considering it till 80. Control C, Control Alt V, format, पता नहीं क्यों ही करना, 50, 60, 70, 80। ओके, सो वी हैव प्लॉटेड इट। एंड देन सेम हम लोग को यहाँ पे एक जगह छोड़ना है, एज आई मेंशन। इसको कनेक्ट कर देना कि हम लोग को जानना क्या है, कि भाई हम लोग को जानना है कि इस स्पेसिफिक लेवल्स पे प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, राइट। तो ये एक सिनेरियो होगी कि 10% सेल्स ग्रोथ एंड 40% ग्रॉस मार्जिन है, व्हाट विल बी आवर प्रॉफिट, एंड देन इस पे क्या होगा। तो इससे क्या है ना, पूरा टेबल। एंड वन मोर थिंग दैट वी कुड डू हियर इज, लेट्स जस्ट फॉर्मेट इट कस्टम, सॉरी sorry, border custom, and then let's just take some random line and then इसको यहाँ डाल देते हैं, ओके। एंड देन यहाँ पे भी कंट्रोल 1 बॉर्डर और इसको डाल देंगे नीचे। तो तुम लोग देख सकते हो कितना एक छोटा सा क्यूट सा, लाइक क्या होता है, छोटा सा क्यूट सा वो हो गया। तो इसमें भी हम लोग को सेम करना, ऑल्ट ए डब्ल्यू टी। बट इधर क्या करना है, इधर दो दो वैल्यूज इनपेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल रो क्या हो गया, ये रो में हम लोगों ने क्या डाला, ग्रॉस मार्जिन, तो उसको सेलेक्ट कर लिया। वन मोर मिस्टेक, आई ऑब्वियसली डू मिस्टेक्स। वी नीड टू सेलेक्ट दिस होल डेटा, देन डू ऑल्ट ए डब्ल्यू टी। रो में क्या डाला हमने, रो में डाला है ग्रॉस मार्जिन। एंड देन कॉलम में क्या डाला है, कॉलम में हमने डाला, जो पिछले गलती किया था वो है सेल्स ग्रोथ। So when I press this and I do enter, boom, you see all the data is here. And then like formatting तो obviously हम लोग कर लेंगे, नहीं तो बाद में कर लेंगे। But as you can see, every now how do you verify it? Obviously अभी जो है 10% sales growth and gross margin 75%. Let's just keep it 70% to just check. So 70% gross margin and 10% sales growth. 70% gross margin and 10% sales growth, ये रहा 11165, 11165। And if you want कि नहीं नहीं मेरे को यही चाहिए, तो let's just control alt v, हमेशा बदमाशी, control alt v। I go here, I press format, and then 1 second, yeah, so as you can see एकदम प्रॉपर क्यूट सा फॉर्मेट हो गया। बट इसका थोड़ा मतलब अच्छी हो गया। ओके, तो अभी क्या मान लेते हैं, सो दिस इज हाउ फाइनेंशियल मॉडल्स में वी आर गोइंग टू बी यूजिंग इट। एंड इसका कलर थोड़ा ऐसा कर देते कि दिखे ना। सो दिस इज अ मोटा मोटा व्हाट इज सिनेरियो एनालिसिस। सो इफ यू आर वंडरिंग, आई मेंशन दैट तीन चीजें हैं, हमने सिर्फ दो चीजें कवर की है। नाउ कमिंग ऑन टू सिनेरियो मैनेजर, उसको भी क्विकली एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें सिनेरियोस का एक समरी मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिनेरियो नेम, लेट्स से बेस केस। तो बेस केस में लेट्स से हम लोग कौन सा तीन कंसिडर करने वाले हैं। तो इन तीनों कंसिडर करने वाले हैं, ये सब छोड़ो, उसमें ये वैल्यू सेम होंगे, ओके। ऐड, सॉरी, बेस केस, ओ अच्छा बेस केस पहले से, सॉरी। इसका नाम लिख देते हैं बेस्ट केस, चेंजिंग वर्ड N5 to N7, या N5 to N7 बदल दिया। एंड बिकॉज दिस इज द बेस्ट केस, सो लेट्स जस्ट से 16,000 हमारा करंट सेल कर देते, सेल्स ग्रोथ को भी 20% से बढ़ा देते हैं, एंड देन लेट्स से ग्रॉस मार्जिन को भी 80% कर देते, राइट। इसको कर दिया, एंड देन वी हैड वन वर्स्ट केस, सेम वी सेलेक्ट, एंड देन इसमें भी हम लोग को छेड़छाड़ करना है। फॉर एग्जाम्पल 13,000 सेल्स कर देते हैं, 0.05 हम लोग कर देते हैं कि सेल्स ग्रोथ, एंड ग्रॉस मार्जिन को 0.5 कर दें, 50% ग्रॉस मार्जिन है। एंड देन इफ आई प्रेस ओके, सो यहाँ पे तीन केसेस आ गए। यू कुड आइदर क्लोज इट, तुमको ये टेंशन नहीं लेना कि सेव नहीं हुआ, इसमें ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, राइट। एंड देन इफ आई जस्ट प्रेस दिस, यहाँ पे है इसका, लाइक क्या, अगर आप समरी प्रेस करेंगे ना, एंड देन बिकॉज दीस ऑल आर, या आई जस्ट शो यू, ओके, बिकॉज दीस आर लाइक कनेक्टेड टू दीस थिंग्स, इसीलिए क्योंकि अगर I'll just explain it. देखो बेस्ट केस वर्स्ट केस इन तीनों का बता रहे हैं, बट बिकॉज ये तीनों इनडायरेक्टली कनेक्टेड है इन सब से, सो इसका भी रिजल्ट आएगा। अभी क्योंकि अभी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 32 तक ही आ सकता है, लिमिट है। क्या हो गया, सो आई जस्ट डिलीट इट, एंड देन इफ आई जस्ट ओपन इट एंड इफ आई जस्ट प्रेस समरी,
बूम, सो एज यू कैन सी, यहाँ पे हम लोग आ गया बेस केस, बेस्ट केस, वर्स्ट केस क्या क्या था। उस वक्त हम लोग ने क्या बोलते हैं सेल्स का क्या क्या नाम लिया था। ये 14,500 बेस्ट केस में ये एंड देन रिजल्टिंग सेल्स फॉर एग्जांपल व्हाट वाज कनेक्टेड टू इट। सो लाइक द प्रॉफिट इज पर्टिकुलर केसेस में क्या क्या होंगे प्रॉफिट्स। सो इफ एनीथिंग एल्स वाज इवन कनेक्टेड टू दो स्पेसिफिक सेल्स वो भी आ जाता। वो कोई टेंशन का बात नहीं है। सो दिस इज एन एग्जांपल की क्या आता है समरी रिपोर्ट में। So this is how we completed scenario analysis. So वो खत्म करते हैं। अब आता है डेटा वैलिडेशन। Guys, I'll just explain you quickly that डेटा वैलिडेशन क्या होता है। Obviously डेटा वैलिडेशन alt A and then डेटा वैलिडेशन के लिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक कॉलम है V। तो ऑल्ट ए वी एंड देन डेटा वैलिडेशन। तो ये क्या चीज के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट से दैट इफ यू वांट टू अज्यूम क्या ग्रॉस मार्जिन 100% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसीलिए तुम लोग चाहते हो कि भाई कोई भी अगर यहाँ पे 100% ज्यादा डालने की कोशिश करे तो वो ये रोक दे किसी तरीके से, ठीक है। तो हम लोग बोले थे कि अलाउ करो डेसिमल वैल्यू एंड देन डेटा बिटवीन लेट्स से 0 and 1 और 0 and 100% के अंदर होना चाहिए, ठीक है। इनपुट मैसेज क्या होगा। हाय, subscribe to my channel, let's just say yeah, and then value should be between 1 and 100 percentage. 1%, 1%, 100। एरर अलर्ट में भी अब तीन चीजें हैं। इधर यू कुड यूज स्टॉप। स्टॉप मतलब अगर कोई 100% ज्यादा डालने की कोशिश कर रहा है, फिर नेगेटिव डालने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसको डालने ही नहीं देगा। या फिर तुम लोग वार्निंग में डाल सकते हो कि भाई अगर कोई लिख रहा है तो ये सिर्फ वार्निंग दे देना कि एरर भाई, एरर, एरर भाऊ, तुम गलत वैल्यू डाल रहे हो। सो दिस इज कि भाई गलत वैल्यू डाल रहे हो एंड ओ शिट, मैंने चुना ही नहीं क्या। ओके ओके, आई गेस यू डिड नॉट नोटिस बट मैंने एक्चुअली इसको यहाँ सेलेक्ट कर लिया। सो we'll have to do this again, sorry guys। alt a, sorry, alt a v और v and then sorry डेसिमल क्विकली कर लेता हूँ 0 से 1 के बीच में। इनपुट मैसेज शॉर्ट में लिख देते हैं हाई बिटवीन 0 and 100 percentage। एरर अलर्ट में हम लोग चुना था वार्निंग, हाउ, तुम गलत हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ डाल दिया। तो लेट्स से मैं 120% डालूं तो भाई देख रहे हो भाव तुम गलत हो। नाउ यू कुड आइदर कंटिन्यू, इफ यू जस्ट प्रेस कंटिन्यू तो 120% इंप्लीमेंट हो जाएगा, दैट्स नॉट एन इशू। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वार्निंग एंड स्टॉप। अगर वी इफ ऑल्ट ए डब्ल्यू, सॉरी, ऑल्ट ए वी, तो अगर हम लोग यहाँ पे अदर देन दिस अगर स्टॉप चुनते तो मेरे हिसाब से वही होना चाहिए कि इट वुडंट इवन लेट अस पुट अ वैल्यू ऑफ 129। देखो तुम गलत हो, यू कैन नॉट इवन पुट, यू हैव टू पुट 70 पर वो ऐसा हो गया ना। ओके 70%। तो इसमें यही दिक्कत है कि भाई स्टॉप डालोगे तो यू कैन नॉट इनपुट वैल्यूज, पर अगर वार्निंग डालोगे तो यू कैन इनपुट वैल्यूज। अभी एक बार वार्निंग में डालते हैं एंड देन वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू कि भाई अगर गलती से यहाँ पे 120 किसी ने डाल दिया एंड इफ यू वांट टू फाइंड कहाँ गलती है तो सेम ऑल्ट ए बी में जाओ। ये देखो ऑल्ट ए बी एंड देन इफ आई प्रेस सर्कल इनवैलिड डेटा तो यहाँ पे जो भी गलत डेटा होगा ना उसको रेड कलर सर्कल में कर देगा सो दैट यू नो कि यहाँ गलती हुई है एंड तुम लोग उसको सुधार सकते हो इन एन इंस्टेंट। So this is all about data validation. Protecting sheet is pretty simple. I'll explain it to you quickly. So let's say you don't want someone कि भाई कोई गलती से formula cell में कुछ ऐसा input कर दे and then it will take you a lot of time to find that error. You could like obviously do it via control Z alt S and find constant and you could find do that, but as a matter of safety what you could do is इसको यहाँ पे जाओगे कंट्रोल वन प्रोटेक्शन। सबसे पहले तुम लोग जो चाहते हो कि इस वैल्यूज को बदल सके उसको कंट्रोल वन में जाके अनलॉक कर दोगे, ठीक है। एंड देन तुम लोग क्या करेंगे ऑल्ट रिव्यू के अंदर जाओगे एंड देन प्रोटेक्ट वर्कशीट के अंदर जाओगे, सेलेक्ट लॉक सेल्स, सिलेक्ट अनलॉक सेल्स, लेट्स से ओके कर दिया। तो अगर तुम लोग देखोगे अगर मैं कोई भी फॉर्मूला वाले प्रेस करूँ, अगर मैं चेंज करने की कोशिश करूँ तो इनको करने नहीं देगा अनलेस आई रिमूव दैट। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, देख रहे हो? इसको मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बट अगर मैं फॉर्मूला वाले में कुछ डालने को बैठा तो ये एरर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू प्रोटेक्ट शीट इन क्विक। एक्स लुकअप वी लुकअप क्विकली। सो वी लुकअप इसकी भाई फॉर एग्जाम्पल इफ हम लोग को जानना है कि कूपन रेट क्या है अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 25% पे है।
सो वी लुकअप वर्क्स व्हेन जो हम लोग देखने वाले कि डेट टू इक्विटी 25% है तो कूपन रेट क्या है, तो डेट टू इक्विटी को कहाँ से रेफर करोगे, यहाँ से। सो यहाँ पे वी लुकअप काम आ जाता है, जस्ट शो यू। ओके, ऑल्ट ए, सॉरी सॉरी, ऑल्ट आर, अनप्रोटेक्ट शीट। ओके, नाउ यू कैन चेंज ऑल दिस। इक्वल टू वी, क्या मस्ती करते हो भाई। इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, मेरे को 25% को देखना है। कहाँ से देखना है, ये पूरा डेटा वैल्यू मैंने दे दिया। और मेरे को कौन सा रिजल्ट चाहिए, मेरे को चाहिए कूपन रेट जो है थर्ड वन, सॉरी 1 2 3, थर्ड। एंड देन अगर तुम लोग को चाहिए कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 27% डाल दिया, वो यहाँ पे है नहीं, तो इफ यू गिव अगर तुम लोग फॉल्स लिखोगे, तो अगर यहाँ पे 27% लिख दिया तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। बट हम लोग ज्यादातर ट्रू लिखते हैं, उसके लिए वन डाल दिया। एंड देन इफ आई प्रेस ओके, 9.5%, लेट्स से इफ आई जस्ट डू 28, तब भी 9.5%, लाइक द स्मॉलर वैल्यू। एंड लेट्स से 30% कर दिया तो 9.75। दिस इज लाइक द यू नो दिस इज लाइक द बेसिक। बट लेट्स से अगर यही चीज लेट्स से अमन उसका वैल्यूज 10, 5, 20, 30, अरे यार 10, 20 एंड देन 30, एंड देन लेट्स से दिस वाज लाइक द डेट टू इक्विटी रेशियो। तो अगर तुम लोग को जानना होता अरे भाई मैं यही कर देता हूँ ना, कंट्रोल C, कंट्रोल ऑल्ट भी किया और मैंने कर दिया ट्रांसपोज, वन सेकेंड, ओके ट्रांसपोज एंड देन ओके। तो भाई अगर मेरे को यहाँ जानना है कि सेम चीज, तो इधर मैं व्हील को अब क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैं डेटा ढूंढ रहा हूँ डेट टू इक्विटी, वो फर्स्ट रो में नहीं है, वर्टिकली नहीं है, इसमें हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल में यूज करते हैं एच लुकअप। एच लुकअप में सेम चीज, ये मेरे को ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है, ये करना है। और ऑब्वियसली द एच लुकअप विल नो कि भाई सबसे टॉप रो में मेरे को ये वैल्यू ढूंढना है, एंड वी लुकअप विल बी नो कि फर्स्ट रो में ढूंढना है। दिस इज लाइक द बेसिक फंक्शनलिटी जो है। रो इंडेक्स नंबर क्या हो गया, मेरे को तीसरा कूपन रेट चाहिए। लेट्स जैसे तुम लोग के लिए हम लोग को जानना है रिस्क रेटिंग क्या है, ठीक है। एंड देन वन, इफ आई जस्ट प्रेस एंटर, दिस इज लाइक द रिस्क रेटिंग। तो यू कैन सी लाइक क्लियरली कि यहाँ पे काम कर रहा है। लेट्स जस्ट से मैं इसको 50 कर देता हूँ, तो ये चेंज हो रहा है। सो एग्जैक्टली वी लुकअप इसको अगर हम लोग को वर्टिकली देख रहे हैं, एच लुकअप इसकी ऐसे देख रहे हैं। बट लेट से यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो के बदले, ओके कूपन रेट हम लोग को जानना है, बट आई विल रेफर इट टू रिस्क रेटिंग, कि भाई अगर स्पेसिफिक रिस्क रेटिंग हुआ तो क्या होगा। यू नो सो फॉर एग्जाम्पल मेरे को जानना है कि अगर VAA3 है तो कूपन रेट क्या होगा। तो यहाँ पे यू कैनॉट यूज वी लुकअप एंड एच लुकअप। फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट शो यू, व्हाई नॉट जस्ट शो यू लुकअप वैल्यू VAA3, एंड देन मेरे को ये जानना है। And then index हम लोग कूपन रेट जानना है, थर्ड कॉलम वन। See, there'll be an error because why VLOOKUP में हमेशा they are always looking at the first thing we are choosing. Now you may say कि भाई rather than doing this, why don't I just do this? One second. I believe this should work. C17 to D10. Oh sorry. अरे भाई ये हम लोग ने क्या गलती किया ना, ये यहाँ से सेकंड रो है ना कूपन रेट, तो बस ये। तो दिस could work, but an other way that you could do it is by using XLOOKUP. बाय यूजिंग एक्स लुकअप। एक्स लुकअप में क्या है, ये बहुत सिंपल है। लुकअप वैल्यू क्या है, VAA3। अरे भाई कम ऑन, अरे बार यही मस्ती है, कम ऑन। ओके, एक्स लुकअप में क्या है, मेरे को VAA3 डालना है लुकअप वैल्यू। लुकअप अरे मेरे को कहाँ ढूंढना है, ये रिस्क रेटिंग। तो रिस्क रेटिंग इधर से ढूंढना है। रिटर्न अरे क्या है, रिटर्न अरे यहाँ से है। इफ नॉट फाउंड देन मे बी गिव मी दैट यू आर एन इडियट। एंड देन लेट्स से इसमें एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए, एग्जैक्ट यहाँ पे स्मॉलर आइटम चाहिए। So you can see this works, and I'll just explain it कि यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल हो तब भी आपको चेंज नहीं करना। इसके लिए क्या है ये, ओके यहाँ सेलेक्ट करूंगा एंड देन, अरे ओके एंड देन इसके लिए कूपन रेट में सेलेक्ट करूंगा, राइट। प्रेस एंटर, यू सी द आंसर विल स्टिल कम। लेट्स से मैं BA2 लिख देता हूँ यहाँ पे। As you can clearly see, it's absolutely working. So this is an like use of XLOOKUP and all these VLOOKUP, HLOOKUPs. So in this video, I believe I've considered like I've covered everything in detail. And if you have any doubts, do let me know in the comments. And if you have any feedback, do let me know. I'll work on it. And थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है 31 minutes, but I've tried to provide absolute value
So these are the things we covered today. If you have any doubts, tell me. And till then, this is Aman. You'll find the sheet in the comment. So comments with Jagati, you'll find the sheet. Other than this, do let me know. And that's it. This is Aman signing off.